preached unto you. Second chapter, first verse. Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. If so be ye have tasted that the Lord is gracious, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious, ye also as lively stones are built up a spiritual house, and holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Unto you therefore which believe, he is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner, and a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have ordained mercy. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works which they shall behold glorify God in the day of visitation. Submit yourselves to every ordinance of a man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. For so is the will of God, that with well-doing ye may put to silence the ignorance of foolish men, as free, and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Servants, be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully. For what glory is it if, when ye be suffered for your faults, ye shall take it patiently? But if, when ye do well and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Who did no sin, neither was guile found in his mouth. Who, when he was revealed, reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. Who his own self bears our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. For ye were as a sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय 22 वचन से पढ़ते जाएंगे, दूसरा अध्याय 25 वचन तक पढ़ते जाएंगे।
अतः जबकि तुमने भाईचारे को निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हरेक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा, 2 अध्याय पहले वचन से। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। ध्यान रखो इस बात को, 10 वचन। ओके, जब हम मसीह में नहीं रहते हैं ना, तो हम कुछ भी नहीं रहते हैं, डींगे मारते हैं सिर्फ। ओके, हम ये है, हम वो है, हम ऐसे हैं, हम ऐसे शक्तियों को जानते हैं, हम वैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, डींगे हैं सिर्फ। ओके, जब तक आप परमेश्वर यीशु मसीह में नहीं हो तब तक आपकी सारी पहचान डींगे मारना है। हाँ, घमंड की पहचान है। ओके, वो आपके घमंड को सिर्फ जगह देती है। हाँ, आपके शरीर को वो अभिलाषा वासनाओं से तृप्त करती है, ठीक है। लेकिन जैसे मसीह में आप आ जाते हो तभी जाकर आपकी असली जिंदगी की शुरुआत रहती है। ओके, और असली हिस्से में आपकी शुरुआत रहती है। जब तक आपको पता ही नहीं रहता है कि आप असली में है क्या। ओके, जैसा एक डायमंड रहता है जो कोयले में छिपा रहता है, कोई कोयला तो ऐसे तो रास्ते चलते भी कोई उठाएगा नहीं। ओके, चलो कोई बात नहीं, उस कोयले की कीमत बहुत ज़्यादा है, कोई परवाह नहीं। एक आध टुकड़ा भी अगर गिरा है कोयले का, उसके अंदर भी हीरे की कोई ना कोई मात्रा होती है, तो आप उतनी मात्रा को भी ठोकर मार देते हैं। वही उतनी मात्रा का हीरा का टुकड़ा भी अगर मिलेगा आपको, तो वो मात्रा को आप कितने ध्यान से उठा लेते हो और दुनिया भर आप उसके बारे में बताते फिरते हो कि देखो मुझे ये टुकड़ा सा हीरा मिला है। ओके, तो इस प्रकार से आपको बहुमूल्यता समझना है। जब यीशु मसीह में आप आओगे तभी जाकर आप डायमंड पहचाने जाते हो और आपकी बहुमूल्यता आपसे छीनने की कोशिश की जाएगी, आपको छीन लेने की कोशिश की जाएगी। ओके, आपको छीन लेने की कोशिश की जाएगी। समझ में आया? तो आप इतने बहुमूल्य हो जाते हैं कि आपको छीन लेने के लिए सारे अंधकार की शक्तियों के राज्य टूट पड़ता है। समझ में आया? क्योंकि निखर गए हो आप। समझ में आया? तो इसके लिए आप डायमंड बनना चाहते हो तो यीशु मसीह में होना, आप डायमंड हो। अगर आप यीशु मसीह में नहीं हो, आप सिर्फ डींगे मार रहे हो, ऊंची बढ़ाई मार रहे हो और अपनी घमंड की रखवाली कर रहे हो।
ओके, ताकि आप कुछ पहचाने जाओ, ताकि आपका कुछ नाम रहे, ताकि लोग आप मरने के बाद कुछ याद करें तो आपकी घमंड में आपने किए हुए काम याद रखें। ओके, तो इसके लिए आपको यही बातें है कि आप रहते नहीं है, सिर्फ आप बोलबाला है, आपका सिर्फ दिल डॉल है, उसमें दम कुछ भी नहीं है। ओके, नाशवंत है। ओके, तो ये क्या लिखा है वचन, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। मसीह उत्तरदायित्व 11 वचन से आगे, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। तो यीशु ने भी वही सिखाया है, जो बुरा कर रहा है उसके साथ तुम बुरा मत करो, भलाइयों को करो। हालेलुया। परमेश्वर के दास 13 वचन से आगे, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हकीमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों को प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। ये शरीर से हमको कौन से व्यवहार कैसे करना है उसकी टीचिंग है। ये आत्मा के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये शरीर के व्यवहार में हम अन्य जातियों के बीच में है। ओके, जिसके बीच में अलग अलग विश्वास करने वाले लोग हैं, अलग अलग भक्ति करने वाले लोग हैं, उनके बीच में हम मसीह लोग शरीर की अवस्था में कैसे जीना है। ओके, मसीह हमारा आदर्श। 18 वचन से आगे, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। हमारी युद्ध को हम किसके हाथों में लेकर जाते हैं? परमेश्वर के हाथों में लेकर जाते हैं। हम बदले के बदला नहीं दिखाते हैं, है ना। हम किसी को पाप के बदले पाप करके नहीं दिखाते हैं, है ना। हम परमेश्वर के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं और परमेश्वर के हाथों में न्याय सौंप देते हैं। हालेलुया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हालेलुया। अब हम अपने प्राणों के रखवाला यीशु मसीह और हमारा अधिकारी यीशु मसीह, हम उसके पास लौट आए हैं। अब हमारी रखवाली निश्चित है और हमारी अगुवाई भी निश्चित है। हालेलुया। तो हमारे लिए ये वचन पत्रस में लिखा हुआ हम बारंबार इसको आज दिन भर में पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर से जो भेद है वो हमारे आत्मा का और शरीर का संबंधित भेद है। ओके,
शरीर में कैसे जीना है ताकि आत्मा में शांति बनी रहे, और आत्मा में कैसे जीना है ताकि शारीरिक अवस्था में शांति बनी रहे। ठीक है, तो ये बारंबार पढ़ना है, ये लाइव एक्टिवली अभी चलने वाला जीवन हम जी रहे हैं। ठीक है, प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए तुझे धन्यवाद करते। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लाया, इसके लिए धन्यवाद करते। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। बिनती प्रार्थना को करते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन।